Hello students, good evening. So last lecture we have finished electrochemical series that is also called electromotive series, or we can say activity series. That was arrangement of electrodes in the decreasing order of their SRP values. What is SRP? Standard reduction potential. Okay, in that हाइड्रोजन का वैल्यू देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यू इज standard hydrogen electrode, and those electrode which are placed above hydrogen, okay, they have got positive SRP. आपको मैंने बताया था SRP, again I'm telling reduction. So reduction positive means what? Reduction. And those substances which undergo reduction act as oxidizing agent. That's why those electrodes which are placed above hydrogen, they have got positive SRP, hence they undergo reduction and act as oxidizing agent. Now, how to select which one is strongest oxidizing agent? So, that electrode whose value is highest positive. Okay, likewise, those electrodes which are placed below hydrogen, they have got negative SRP. Therefore, they undergo reduction. Negative SRP means what? Reduction negative hai. That's why they undergo oxidation and hence act as reducing agent. Now, how to find out strongest reducing agent? So, strongest reducing agent is highest negative SRP. Highest negative SRP. Okay, likewise. Now, the next thing here, this concept is electrode potential and cell potential. You know one thing, combination of two electrode is called cell. Okay, now just I'll go through this one first और बाद में आपको बताता हूँ क्या है. See, this is what electrode. So one electrode will act as anode and another electrode will act as cathode. But obviously तो आपको बताने का जरूरत नहीं है. And one more thing I have told you कि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन. That means one whatever potential develop at anode is oxidation potential, and potential developed at cathode is what? Reduction potential. Okay, देखो, each half cell consisting of electrolytic conductors and electronic conductors. Okay, what is electrolytic conductors? So ions present in the solution जो conductivity को cause करेगा. And electronic conductor means जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, in short metals. At surface of solid metal and the solution there exists difference of electrical potential. बताता हूं मैं क्या है, डायग्राम से बताऊंगा. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? अगेन या माइंड में याद रखने का, इलेक्ट्रोड इज व्हाट? हाफ सेल, एनोड और कैथोड. पोटेंशियल डिफरेंस established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface is called electrode potential. पढ़ने की बात है, कुछ समझता नहीं. बेटा भी ध्यान देना क्या होता है. 1 minute. Now, listen. This is what one beaker. This is another beaker.
यहाँ पे आपका एक रॉड है, यहाँ पे आपका दूसरा रॉड है, नाउ दिस इज व्हाट ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। बेटा भी ध्यान देना। The thing is what? Suppose this is zinc rod. This is zinc rod. And this is copper rod. Okay. Now the important thing is what? Listen. अभी देखो, SRP of zinc is less and SRP of copper is what more. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। यहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है। Now the thing is, the important thing is SRP of copper is what more, and that's why copper undergo reduction and this zinc undergo oxidation. In short, this will act as anode and this will act as cathode. इतना सबको क्लियर हुआ रहेगा। जिसको नहीं समझा रहेगा मैं वापस बताता हूँ बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है और जिंक का एसआरपी नेगेटिव है। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर गोइंग टू कपल कॉपर एंड जिंक, okay, so it is copper should undergo reduction and that's why copper will act as cathode and zinc will act as anode. Now अभी क्या होगा देख, ये हम लोग मेटल वायर से कनेक्ट किया है। ओके, नाउ सो एज दिस इज व्हाट एनोड, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? आई थिंक नो नीड टू टेल ना। Zn gives Zn plus Zn plus Zn plus 2 and 2 moles of and 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड के पास इधर क्या होगा? Cu plus 2 electron C, in short ये एटम। नाउ अभी बेटा ध्यान देना, आपको मैंने
उसके लेक्चर के पहले बताया था आपको, मैं सॉल्ट ब्रिज बताऊंगा तो ये बताऊंगा, तो बेटा ध्यान दो अभी क्या होगा देखो. बिकॉज ऑफ दिस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. द बेस लाइन याद रखिएगा, इसके पहले में आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल से भागेगा, वायर से भागेगा, और आयंस हमेशा सॉल्यूशन में रहेंगे, आयंस हमेशा सॉल्यूशन में रहेंगे. नाउ so what will happen because of this reaction here in the solution, because of this oxidation, more and more Zn plus 2 will get accumulated. That means यहाँ पे solution में कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, solution में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये जो रॉड है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा. एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद इसमें जो है सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, तो इसमें सल्फेट आयन भी है ना, सल्फेट आयन भी है. तो क्या होगा, ये कॉपर आयंस क्या होंगे, इसके ऊपर जाएंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई ये जो रॉड है ये पॉजिटिव रहेगा, ये रॉड पॉजिटिव रहेगा, और कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयंस क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे. सो here rod carries negative charge and solution carries positive charge. Such type of situation is called electrical double layer, which is not mentioned in your syllabus. Electrical double layer, and because of this there is a development of certain level, certain potential, and this is what oxidation process, and that's why it is called oxidation potential. ये आपको मालूम हो. Okay, now here same thing, here solution carries negative charge and rod carries positive charge, and that's why again here is a development of electrical double layer, and because of electrical double layer, okay, there is a development of certain potential. Okay, this way. Now if you observe carefully, आपको मैंने बताया था सॉल्ट ब्रिज, तो होगा क्या, ये सॉल्ट ब्रिज जो है, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल, आपको मैं पोटेंशियल बता रहा हूं, तो इधर व्हाट इफ यू अंडरस्टूड, अगर मनते तो मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूं, बेटा ध्यान दो. यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन, ओके, दिस सॉल्यूशन कैरीज positive charge and rod carries negative charge because of this reaction. हमेशा एक चीज याद रखने का, आयंस हमेशा सॉल्यूशन में रहेंगे, and because of this situation, as rod and solution are in connection, this is called electrical double layer. Same thing, ये जो निगेटिव आयंस दिख रहे हैं वो सल्फेट आयंस है, और रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, again double layer, and this develop potential, and that is called electrode potential, and पूरा सेल का is what, cell potential. Okay, so this funda is called electrode potential. And आप लोग याद रखो या किधर तो मेंशन करके रखो, development of electrode potential is because of electrical double layer. Okay, now next thing, आगे देखो बेटा. Now देखो यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस
established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface, जो मैंने अभी बताया वो is called electrode potential. Oxidation potential, same thing, potential develop, okay, with oxidation reactions called oxidation potential, same thing. Reduction potential develop due to reduction reaction. Now what is the formula to find out cell का EMF? EMF of the cell is nothing but oxidation. अभी आपको मालूम है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा, एक रिडक्शन रिएक्शन रहेगा. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा. बेटा अभी ध्यान देना अच्छे से. This EMF of the cell is nothing but electromotive force, जिसको हम लोग EMF बोलते हैं. Cell potential is the force that pushes electrons away from anode and pulls them towards cathode. Now, here electrons are developed at anode, and my dear friend, generally in electrolytic cell means what? Generally हम लोग 10th तक जो पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहता है. ओके उसमें बैटरी क्या करता है? एनोड से इलेक्ट्रॉन खींचता है और वो कैथोड के पास देता है. दैट मींस कैथोड के ऊपर वहां पे इलेक्ट्रॉन गैदर होता है, and that's why cathode carries negative charge in electrolytic cell and anode is deprived of cell. That's why anode carries positive charge. This you people have studied up to 10th standard. Now we are talking about electrogenic cell. तो यहाँ पे what is the reaction generates electron? आपको मालूम है, आपको मैंने इनिशियल लेवल पे बताया था. ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड and reduction is the reaction in which electrons are used. So एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को डेवलप करने वाला, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला रिएक्शन है. That's why anode carries negative charge in electrogenic cell. This is the main point of confusion. बच्चा यहाँ पे दोनों सेल में कंफ्यूज हो जाता है. Now, what is next thing? देखो लिखा यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल. तो अभी आपको मालूम है व्हाट इज पोटेंशियल. तो अभी हम लोग देखा कि इट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग. नाउ स्टैंडर्ड. So when this word standard is there, temperature should be 25 degree, nothing but 298 Kelvin. Concentration should be 1 molar and pressure should be, agar gas hai to pressure should be 1 atmosphere. This is the only meaning. Listen. Standard conditions are what? Temperature, concentration and pressure. Abhi dekho. Electrode potential and the cell potential depend on concentration of solution, pressure of gases and temperature. Okay, for the sake of comparison of different galvanic cell, it is necessary to measure the cell voltage under the given set. That means if two different cells are given, so how to compare these two? So one कुछ तो कॉमन मांगता है ना, and that's why this concept is there, standard potential. That means by keeping concentration of two solution in the two cell at 1 molar, temperature 298 Kelvin, okay, and then find out EMF. Okay, so we can compare these two by keeping these parameters same. This is called standard potential. ओके, ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क के लिए आएगा, बाद में ये प्रिपेयर करके रख देना. ओके, अभी आगे देखो. Cell potential or EMF. Again, what is cell potential? No need to tell. It is what? Tell me. Oxidation plus reduction reaction. The difference of potential between electrodes, anode and cathode, corresponding to external flow of electron
फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये क्या लिखा है आपको, आपने 10th में पढ़ा है ना इलेक्ट्रिसिटी। अगर if I want flow, that means there should be level difference. If I want flow, there should be level difference. Then and then only flow is possible. If two levels are at, अगर दोनों लेवल सेम है तो उसमें फ्लो नहीं होगा। हीट का फ्लो मांगता है, so there is, tell me, temperature difference. Likewise, difference of potential between electrodes corresponding to external flow of electron, जिसका वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएगा, okay, from anode to cathode. Standard reduction potential. Now don't get confused. What is standard? 25 degree, 1 molar, and अगर गैस है तो 1 atmosphere. It is called SRP. How to mention this one? Represent E naught reduction. Naught means what? Standard. Electrode potential associated with reduction half reaction. In short, electrode potential due to reduction half reaction, or word क्या लिखा है? Standard, that takes place at the electrode when all the substances involved are in their standard state. Simple सा पैरा definition है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको उल्टा पढ़ो, पोटेंशियल को क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस आर kept at standard state is called SRP. What is SOP? Standard oxidation potential. Same thing, electrode potential associated with oxidation half reaction that takes place at electrode when all substances involved are at standard state. Standard EMF. Standard EMF. यहाँ पे बच्चा जंबल में आ जाता है. What is that? Potential of galvanic cell when all the substances involved in the cell reactions are at standard state. But यहाँ पे देखो, अभी इधर प्रॉब्लम है थोड़ा सा. What is standard EMF of the cell? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल और रिडक्शन का पोटेंशियल ऐड करो. यस, 100% करेक्ट. But whatever electrochemical series we have seen, that electrochemical series, that values are there. These values are in the form of SRP. What is that? Standard reduction potential में है. They are in the form of reduction. They are in the form of reduction. Now, but what definition says? आपको ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल और रिडक्शन का पोटेंशियल ऐड करना है. यस, ऐड किया. बट वी डोंट हैव एसओपी वैल्यूज इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. वी हैव एसआरपी वैल्यूज. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आपको मालूम है ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या रहता है? रिडक्शन. तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन दिस ऑक्सीडेशन एज, देखो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? उल्टा रिडक्शन. तो देखो उल्टा मीन्स व्हाट? नेगेटिव रिडक्शन. एनोड तो एनोड ही लिखा है. तो जस्ट माय डियर फ्रेंड, ये ऑक्सीडेशन को मेरे को क्या पढ़ना है? उल्टा रिडक्शन, नेगेटिव रिडक्शन. व्हाई? बिकॉज व्हाटएवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैल्यूज आर देयर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एसआरपी. तो ये मैंने ऑक्सीडेशन की जगह पे बच्चों सिर्फ माइनस रिडक्शन लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है. ये तो वैसा ही है. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये पॉजिटिव पहले लिखा, ये निगेटिव बाद में लिखा. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन शॉर्ट एसआर कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड. एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड. किधर किधर लिखा रहता है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. तो आपको मालूम है लोन left hand side undergo oxidation, act as anode and carries negative charge. So anode means what? Left hand side, and cathode means what? Right hand side. So I can write down here SRP of LHS and SRP of RHS minus SRP of LHS. मैं एक बार वापस बताता हूँ. स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. सेल में दो प्रोसेस, एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन. बट व्हाट
whatever values we are getting, that values are in the form of SRP. So I will convert this oxidation as minus reduction और मैंने इसको rearrange किया. So this is what standard EMF of the cell. So what is the formula? SRP at cathode minus SRP at anode. Okay. आगे बेटा ध्यान देना अभी. Next concept is there. Concept is Nernst equation. होता क्या है जनरली, अपने बुक में एक टॉपिक रहता है, जिन लोग का बाय हार्टिंग स्ट्रॉन्ग रहता है वो वैसे ही बिना समझे वो बाय हार्ट कर लेते हैं. दिस बाय हार्टिंग फंडा इज मोमेंटरी. ना तो नर्न्स इक्वेशन है, तो टीचर बताता है कि ये नर्न्स इक्वेशन है, इसका डेफिनेशन मींस व्हाट, ये जो डेरिवेशन है 2 मार्क के लिए आएगा, कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है, इसको टर्म्स को यूज करो. क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है. नाउ why we have to use Nernst equation? So first of all, listen here. देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, when the cell is not mentioned at standard condition. Now I think no need to tell what is the meaning of standard condition. Temperature 298 Kelvin, concentration 1 molar, and pressure of the gas 1 atmosphere. Pressure of the gas 1 atmosphere. Okay, pressure of the gas 1 atmosphere. Now, what is next thing? To find potential of half cell. To find potential of half cell. क्या किया? देखो, how to find out potential of half cell? So it is not at all possible. If you want to find out potential of half cell, we have to connect that half cell into another half cell. आप बोलोगे सर 2 हाफ सेल किसी को स्ट्राइक भी नहीं होगा. अरे सर हाफ सेल मींस व्हाट? एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड. तो if you want to find potential of electrode, we have to connect that electrode to another electrode and we have to form cell. बाद में सेल का EMF फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा, तो वो माइनस करके उसको आपको उसका पोटेंशियल पता चलेगा. ये बंदे ने बोला ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है. डू वन थिंग, यू फॉलो माय इक्वेशन, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर. व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? व्हेन cell is not mentioned at standard condition, then also we can find out EMF of the cell with the help of Nernst equation. How? It's because cell EMF depends on what? Concentration. अगर concentration, अभी आप बोलोगे कैसे, आपको मालूम है, आपको मैंने बताया था, अगर आप बैटरी यूज करोगे, तो what is that? बैटरी यूज करोगे तो आपका वो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो बट ऑब्वियस उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा. ओके, दिस वे सेल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. सेल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. नाउ लिसन, एक सिंपल सा जनरल रिएक्शन में लेता हूं. ओके, सपोज इट इज ABCD. A and B reactant, C and D product. Now, cell, how to find out this thing? देखो, EMF of the cell. देखो ये क्या लिखा है? Standard EMF of the cell. Standard EMF of the cell minus RT upon NF. LN is मालूम रहेगा ना? What is LN? Log to the base E. Log to the base E. Now, so शायद किसी को याद आएगा, देखो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है. व्हाट इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट? आपको मैंने सॉल्यूशन में बताया था. एक्टिव मास, मोलार कॉन्सेंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C, ये मोल्स है तो रेस टू आ गया, D रेस टू D अपॉन A रेस टू A एंड B रेस टू B। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे हाँ, ये तो सर हम लोग किधर तो सुना है, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। अरे हाँ सर, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ यही है सर वो, यस वही है। नाउ दिस इज व्हाट, बेटा भी ध्यान देना, ये फॉर्मूला है ईएमएफ ऑफ द सेल। सी द डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। अभी क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। डरने का जरूरत नहीं है, अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें से हम लोग फॉर्मूला आपको मालूम है ना, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, इससे आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पता चलेगा। Now this ln log to the base e को log to the base 10 कन्वर्ट किया करके फैक्टर आ गया 2.303 RT अपॉन NF। लॉग सिर्फ पहले स्टेप में ln को मैंने log to the base 10 कन्वर्ट किया। Now question arises, what is this thing? What is not standard EMF of the cell? What is R? Gas constant. What is that? 8.314 joule per Kelvin per mole. Now, can you tell me 3 values for R? Anyone? Anyone? This question is from States of Matter 11th standard. Just tell me R का, listen here, this is what problem. थर्मोडायनेमिक्स में आर आता है, सॉल्यूशन में आर आता है, हम लोग सम सॉल्व किया है। ओके, सो जस्ट टेल मी व्हाट आर द 3 वैल्यूज, एनीवन? हेलो, हेलो Sir, don't know. 8.3145 जूल पर मोल के। हाँ वो तो है। नाउ लिसन हियर प्लीज, ओके, इट्स गुड आंसर, डोंट नो, वेरी गुड। ओके, नाउ one value which is in front of you, 8.314 joule per Kelvin per mole. Next one 0.082 liter atmosphere Kelvin per mole, and next one 2 calorie per Kelvin per mole, 2 calorie per Kelvin per mole। ओके, ये मालूम हो। नाउ what is next one? Capital T means temperature should be in Kelvin. Okay, मालूम है ना, capital T is equal to small t plus 273. What is next one? N. This is what? Number of moles of electron. हम लोग बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा रहता है ना, Zn gives Zn plus 2, Zn gives Zn plus 2 plus, एक मिनट है बेटा, एक मिनट है, देखो Zn gives Zn plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसे ही पढ़ता है, Zn gives Zn plus 2 plus 2 electrons. Now listen here. Now I'll write on same thing, Zn plus 2 plus 2 electrons gives Zn. Zn का atomic mass is around 64. It is around 64. Okay. Now listen.
It is 64. Now, so जो ऐसा पड़ेगा कि yes, this Zn plus 2 ions accept 2 electron. ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर मैं पढ़ रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने 11 में पढ़ा रहता है, आपने 10th में पढ़ा रहता है सर, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन 64 ग्राम जिंक कैसे डेवलप करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सो माय डियर, प्लीज pay attention here. Those who are sincerely serious for JEE and NEET, so it is not 2 electron, it is 2 moles of electron. Means what? 2 into 6.023, 6.023 into 10 raised to 23, 10 raised to 23. इतने इलेक्ट्रॉन जब इस साथ में आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जब इस साथ में आएंगे तो वो 64 ग्राम जिंक पैदा करेंगे। तो प्लीज कभी भी इसको 2 मत बोलना, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना। ओके, इट इज लाइक दिस। नाउ 1 मिनट। ओके, नाउ what is next thing? देखो, it is what F is what? Faraday. F is what? Faraday. Nothing but 96,500 coulomb. 96,500 coulomb. अभी ये क्या है? This is the charge on 1 mole of electrons. 1 mole of electron. What is the meaning of 1 mole of electrons? 6.022 into 10 raised to 20. 0.22 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो शॉक लगेगा, that is what 1 फैराडे। तो 6.022 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन्स का शॉक कितना लगेगा? तो ये 96,500 कूलम लगेगा। In short, my dear, 1 Faraday is nothing but 96,500 coulomb, nothing but charge on 1 mole of electron. Now, बेटा ध्यान देना, what is that standard? तो 25 डिग्री। अभी मैं क्या करता हूं, देखो, ये जो whatever equation I have 2.303, 2.303, 2.303, these are okay, and this P is what 298 and this F is what Faraday. तो ये जो है, ये पूरा वैल्यू कितना बनेगा? 0.0592। क्या बनेगा? 0.0592। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट रख दिया। इन शॉर्ट, ये जो पूरा टर्म है उसमें से क्या बचा? सिर्फ n बचा। तो देखो बेटा यहाँ पे, दिस इज व्हाट EMF ऑफ द सेल is nothing but standard EMF of the cell minus 0.0592 upon n log to the base of concentration of product upon concentration of reactant. अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर रहेगा। I have told you in that solution part what is partial pressure. It is nothing but product of mole fraction and total pressure. Mole fraction and total pressure. तो ये आपको आएगा 2 मार्क के लिए। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, नंस साहब ने क्या किया। नंस साहब ने बताया कि if you want to find out potential of half cell, nothing but electrode, okay, or when cell is not mentioned at standard condition, okay, use Nernst equation. And what is that Nernst equation? अभी मैं डायरेक्ट आपको एंड में लेके जाता हूँ। It is nothing but EMF of the cell is nothing but standard EMF of the cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of product upon reactant. Okay.
This funda is called Nernst equation. Now, listen. Calculation of cell potential. यहाँ पे Nernst equation यूज करेंगे। ये सेल है बेटा, भी ध्यान देना। दिस इज डबल लाइन, लेफ्ट में है कैडमियम और राइट में है कॉपर। Those who have not attended that lecture, आपको मैं एक बार वापस बताता हूँ। This double line, this part is what left hand side, nothing but lone. Lone is nothing but left hand side oxidation, anode and negative charge. तो ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। Now, what is that? You know, lone, again I am telling, left hand side oxidation. So ये जो left वाला part है, it has to undergo oxidation. Now ask yourself, oxidation, two things, oxidation number increases, oxy को आप पढ़ोगे, oxy को, तो oxy को पढ़ोगे तो ox is oxidation number, I means what increases. तो देखो बेटा यहाँ पे ये CD लिखा है, सर के ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स चार्ज जीरो है, एंड एनी स्पीशीज विद जीरो चार्ज इज कॉल्ड एटम। और ये क्या है? आयन है, कैटायन है, तो ये एरो है, तो ये 0 से +2 हो गया। 0 से +2 इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज दिस वन? राइट में है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस। रिड्यूसेस मींस कम होगा, तो ये +2 है और ये 0 है। आई विल पुट एरो फर्स्ट बिकॉज केमिस्ट्री चालू है, तो +2 से क्या होगा? 0 होगा। एंड व्हाट इज रिडक्शन? तो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज, अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। एंड व्हाट आर Nernst equation says? EMF of the cell is nothing but standard EMF of the cell minus 0.0592 upon n log of product upon reactant, log of product upon reactant। अभी आगे देखो, this n is what? Number of moles of electron। तो don't tell me कि यहाँ पे 2 electrons है, ये 2 to 4 हो गया, नहीं। For this process we require, here we require only 2 moles of electron, and that's why यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। Understood? Next one, बेटा भी ध्यान देना है यहाँ पे। ये रेशियो देखो क्या है, CD+2 आयंस है और आयंस सॉल्यूशन में रहते हैं, ये भी आयंस है, सॉल्यूशन में रहते हैं। बट ये क्या है? कॉपर है, और सर के ऊपर कुछ नहीं है, मींस व्हाट? एटम है। CD सर के ऊपर कुछ नहीं, मींस व्हाट? एटम है। एंड माय डियर फ्रेंड, दिस कैलकुलेशन वी हैव डन एट 25 डिग्री, और 25 डिग्री पे अगर मैं ऐसे कॉपर रख दूं तो उसमें कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। दैट्स व्हाई देखो, concentration of solid and pure liquid, I am not talking about solution, pure liquid and gases are taken, consider as one, means what? Unity। ये Nernst equation का सबसे प्यारा पॉइंट है, सॉलिड का, प्योर लिक्विड का और गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेने का? यूनिटी। गैसेस में प्रेशर रहेगा, है ना? गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करते हैं? प्रेशर से। जो गैस का प्रेशर ज्यादा, ओके, एक सिंपल सा गुब्बारा ले लो, एक गुब्बारा फूला हुआ है और एक गुब्बारा कम फूला हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसमें हवा कम है, हम लोग बोलते हैं ना इसमें हवा कम है, इसमें हवा ज्यादा है। व्हाट इज दैट हवा? गैस का प्रेशर कम है, अमाउंट ऑफ गैस कम है, दूसरे में अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा है, तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट प्रेशर, माय डियर। समझा ना? अभी यहाँ पे देखो, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड है, कैडमियम सॉलिड है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट? CD+2 और Cu+2। Understood? So this is what application of Nernst equation। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो सीधे डिफरेंस, एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या है? सिंगल लाइन और
यहाँ पे देखो क्या है, डबल लाइन। व्हाट इज डबल लाइन? सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे सिंगल लाइन है, तो ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन वन सेल। एंड व्हाट इज सिंगल लाइन? शायद किसी को याद रहेगा, इट इज नथिंग बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट? कॉपर रॉड डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयंस। बेटा और एक चीज प्लीज याद रखना है, ऑब्जर्वेशन से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता चलना चाहिए, अरे हाँ सर आई वाज स्टडीइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और या फिर आई वाज गेटिंग देयर आयंस। आयंस तो ऐसे थोड़ी घूमेगा, तो आयंस हमेशा सॉल्यूशन में रहता है। ये बेटा ना चार्ज देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए। प्लीज नाउ आगे। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पहले ही दिमाग में आना है, अरे हाँ सर इलेक्ट्रोड, यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस यू आर टॉकिंग अबाउट हाफ सेल। सो हाफ सेल देखो डायरेक्ट कांटेक्ट, तो Zn+2 लिखा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे क्या? नहीं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Zn। तो अभी मैं इसको नॉन इक्वेशन अप्लाई किया, Ezn इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ Zn minus 0.0592 upon 2 because 2 moles of electron and log of concentration of product। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? Zn आएगा, बट Zn क्या है? सॉलिड है करके मैंने देखो यहाँ पे देखो concentration of solid liquid on gases are 1, सो ये सॉलिड है करके मैंने यहाँ पे स्टेप बढ़ाया, यानी डायरेक्ट 1 लिखा एंड concentration of Zn+2 ions। ओके नाउ बेटा अभी ध्यान देना प्लीज। हाँ लिसन, अभी मैंने थोड़ा लॉग का फंडा यूज करता। देखो ये E अच्छे से देखना, Ezn है, Ezn है, यस सर। E0Zn है, E0Zn है, यस सर। माइनस 0.0592 है अपॉन 2, माइनस 0.0592 अपॉन 2 है, यस सर। तो अभी देखो ये डिनोमिनेटर में है ना, और यहाँ पे साइन क्या है? निगेटिव। तो मैंने क्या किया, ये साइन को पॉजिटिव किया और इसको क्या किया? न्यूमरेटर में लाया। समझा बेटा? दिस थिंग। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल when concentration of Zn+2 ions increases, when concentration of Zn+2 ions increases, this value multiply होगा ना यहाँ पे, और ये पूरा वैल्यू ये इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड ईएमएफ से ये वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मैं वापस बताता हूँ, ये माइनस से मैंने प्लस किया, इसको न्यूमरेटर में लेके गया। सो इफ दिस वैल्यू इंक्रीजेस, व्हाट इज दिस वैल्यू? अरे हाँ सर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इंक्रीजेस, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इंक्रीजेस, सो ईएमएफ आल्सो इंक्रीजेस। नाउ ऐसा एक क्वेश्चन आता है, प्लीज पे अटेंशन हियर। जस्ट यू टेल मी, अगर थोड़ा सा समझा रहेगा तो। हाँ लिसन, डोंट से आई डोंट नो, हाँ प्लीज थोड़ा बेटा सोचने का। दिस इज व्हाट ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस इज व्हाट ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड आई वांट टू ये वैल्यू ये यहाँ पे फोकस करो। यहाँ ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0592 log of CD+2 and Cu+2। Now just tell me, अगर मैं इसको माइनस से प्लस कर दूं तो आप क्या करोगे? ये Cu को ऊपर लेके जाओगे और CD को नीचे लेके आओगे। Am I right? Now just tell me my dear, if I want to increase EMF of the cell, आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा? देखो EMF of the cell, standard EMF of the cell
minus 0.0592 upon 2 log of product upon reactant, बाकी का वैल्यू मैंने 1 जो सॉलिड था 1 कर दिया। अगर मैं ये माइनस को प्लस कर दूं तो ये Cu आपका ऊपर चला जाएगा और Cd नीचे आएगा। अभी देखो फिर न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ेगा, मींस Cu का वैल्यू बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस वो वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। When Cu plus 2 का वैल्यू increases, your EMF also increases. Okay, now what is Cu plus 2? देखो Cu plus 2 क्या है, यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। That means when cathode का concentration increases, yes, EMF of the cell increases. Okay, next part. This is what thermodynamics of galvanic cell. थोड़ा थर्मो का पार्ट है ये, थर्मो अभी तक आपको हुआ नहीं है, थोड़ा बता देता हूँ और बाद में मैं वापस जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको डोंट वरी पढ़ा वापस ही थोड़ा बताता हूँ, मालूम रहेगा आपको। नेम ऑफ द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी and cell potential. So first of all, you know energy is what? Capacity to do work. This definition was there in 8th standard. Now, what is work? आपने पढ़ा है force into displacement. Force into displacement. Okay. आपने 10th में और 11th में इसमें फिजिक्स में भी पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल V, इन शॉर्ट Q इंटू V करते हैं ना, चार्ज एंड दिस वन। ओके, सो वी कैन राइट डाउन इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट चार्ज इंटू सेल पोटेंशियल। ये आपको मालूम है, यहाँ ये बेस लेके अभी मैं आगे चलूंगा। ओके, चार्ज इंटू सेल पोटेंशियल, बट चार्ज ऑन, अभी मैंने बताया था, बट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 1 फैराडे। ओके, सो फॉर द सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? 1 मोल के लिए 1 फैराडे है तो n मोल के लिए कितना रहेगा? n फैराडे रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क का जो डेफिनेशन है वो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो चार्ज है वो कितना हो गया? nf हो गया, और सेल पोटेंशियल को हम लोग E लिखते हैं तो EMF ऑफ द सेल हो गया। इन शॉर्ट मेरा वर्क का, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला बन गया NFE। NFE। नाउ Gibbs concluded that electrical work done in galvanic cell is equal to decrease in Gibbs energy. अभी एक थोड़ा सा Gibbs energy बताता हूँ। Gibbs energy is the energy required to perform useful work. Mean जितना काम होगा, काम के काम वाला, उसमें जो एनर्जी लगता है that is what Gibbs है। वापस बताता हूँ, Gibbs energy is the energy required to perform useful work. तो जब भी वो वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा सेल में, ओके, सो विच इज इक्वल टू, वो वर्क के लिए कितना एनर्जी लगेगा? माइनस डेल्टा जी। तो अगेन आई कैन राइट डाउन दिस इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट माइनस डेल्टा जी। आप बोलोगे सर इधर भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, इधर भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो बट ऑब्वियस इसको हम इक्वेट करेंगे। सो आई विल राइट डाउन माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफई, माइनस सॉरी माइनस एन नहीं बनता है, एनएफई। सो देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस एनएफई। क्या बनेगा? माइनस एनएफई। ओके, अभी आगे। सो एट स्टैंडर्ड कंडीशन,
just tell me what is standard condition. No need to tell 25 degree 1 molar concentration 1 atmospheric pressure. तो डेल्टा जी नॉट, जहां पे नॉट लिखा है वो स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल. ध्यान दो, वापस बोलो. What is electrical work? What is simple? What is mechanical work? Force into displacement. What is electrical work? Charge into potential. So what is that charge? Nothing but 1 mole का charge 1 Faraday, n mole का charge n Faraday, and that's why and cell potential will tell me E. This is work. To perform this work, what we require gives energy, that is minus इतना energy consume हो जाएगा, and that's why I can write down electrical work is माइनस डेल्टा जी. तो ये दोनों को मैं इक्वेट किया यहाँ पे. सो आई गॉट इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट. ओके, दिस इज व्हाट नॉट है, तो स्टैंडर्ड सेल आ गया, स्टैंडर्ड सेल आ गया. ओके, नाउ ये पार्ट अभी नहीं होगा, इट इज अबाउट 2 minutes आ गया. ओके, so I'll stop here. I'll send these notes because those students who are interested, please बेटा ये टॉपिक थोड़ा गड़बड़, अगेन एंड अगेन मैं वापस एक बार बीच में वो पूरा चारों सेल को एट अ ग्लांस जो लिखा वो आपको मैं बता. आई थिंक मैंने नोट्स भेजा है लगता है. यस सर, हेलो सर, आप प्रिंटेड नोट्स भेजने वाले थे ना? कौन सा प्रिंटेड? देखता हूँ. हाँ, तो बट आई थिंक ये मैंने भेजा है लगता है ना, तो जरा प्लीज गो थ्रू कर लेना. Okay, sir. Thank you. So okay, so here we'll stop and we'll continue next time. But again, I am requesting that please, with the help of your textbook, please go through your these 4 cells. These are core part of this topic. Okay, so we'll stop here. Bye bye and good night. हेलो.